Rahim. Dear students, this is the 17th lecture of course title Introduction to Special Theory of Relativity with the course code PHYS 4135. I am your course instructor Dr. Muhammad Azam. In this lecture, we discuss the relativity with electromagnetism in vacuum. As we know that special theory of relativity, the laws of physics must have same form in all inertial frames of reference. And since Newton's laws of motion do not possess this property, mechanics has to be reformulated such that new equations of motion are consistent with special theory of relativity. And this reformulation aids new concepts such as the variation of mass with speed and the equivalence of mass and energy. डियर स्टूडेंट्स पिछले कुछ लेक्चर्स से हम स्पेशल रिलेटिविटी को इन फोर वेक्टर फॉर्मलिज्म में डिस्क्राइब कर रहे हैं और उसके रीज़न यही है बिकॉज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन डू नॉट हैव द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसकी वजह से हमें रीफॉर्मुलेट करना पड़ा उन लॉज को, और उन लॉज को फिर हमने इस तरीके से फॉर्मुलेट किया सो दैट दे आर हैव द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और आपने देखा है कि हमने रिलेटिविस्टिक मैथ को इंट्रोड्यूस कराया, इस तरीके से एनर्जी को हमने फोर वेक्टर फॉर्मलिज्म में रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट हमारा टारगेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्पेशल रिलेटिविटी में इंट्रोड्यूस कराना। और फोर वेक्टर फॉर्मलिज्म लिखने का पर्पस एक ही था, बिकॉज वी वांट टू सी ऑल दीज लॉज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। और जैसे मैंने अभी कहा कि आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कस करेंगे इन स्पेशल रिलेटिविटी में, उसके लिए हम मैक्सवेल इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। मैक्सवेल इक्वेशंस गवर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना, and these Maxwell equations are covariant under Laurent transformation. So this is the biggest advantage Maxwell equations को special theory of relativity में introduce करवाने का। फ़ायदा ये है because they are already covariant under Laurent transformation। पीछे जितने भी हमने laws किए हैं मैकेनिक्स के, न्यूटन्स laws, वो कोवेरिएंट नहीं थे, लिहाजा हमें फोर वेक्टर फॉर्मलिज्म में उन तमाम लॉज को कन्वर्ट करना पड़ा सो दैट इट बिकम्स कोवेरिएंट अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। In fact, Maxwell equations provide a complete description of electromagnetic phenomena and underpin all modern information and communication technologies. They are named after James Clerk Maxwell. This is a Scottish physicist whose pioneer work unified the theories of electricity, magnetism, and light. Today, Maxwell's equations are the essential tool of electrical engineering used to design all the electrical and electronic equipment from cell phones to satellite, televisions to computers, and power station to washing machines. Also, Maxwell equations describe how electric charges and electric currents create electric and magnetic fields. Further, they describe how an electric field can generate a magnetic field and vice versa. These are the four fundamental Maxwell equations.
The first equation describes Ampere-Maxwell law. The second equation corresponds to Faraday law. The third equation corresponds to Gauss law. And fourth equation corresponds to Gauss law for magnetism. आज के लेक्चर में हमारा टारगेट इन इक्वेशंस की कोवेरियंस फॉर्म लिखनी है. जब हम कोवेरियंस की बात करते हैं तो दैट मीन वी हैव टू राइट द लॉज और इक्वेशंस इन 4 वेक्टर फॉर्मलिज्म. और हम ये जानते हैं कि जब इक्वेशंस 4 वेक्टर फॉर्मलिज्म में लिखी जाती हैं तो वो एक सिंगल इक्वेशन में रिप्रेजेंट होती हैं. सो हम इन 4 इक्वेशंस को लेके एक सिंगल इक्वेशन जो है वो लिखने की कोशिश करेंगे, which is the covariance form of Maxwell equations. Here rho is the charge density and J is equal to rho V is the current density, V being the velocity of the charge. आप यहाँ पे गौर करें तो कुछ लेटर्स को मैंने बोल्ड किया, लाइक यहाँ पे आप देखें H, E, J, ये बोल्ड है. Bold mean these are vector quantities, or we know if left hand side is a vector quantity, right hand side must be a vector quantity. Usually हम B से magnetic field को represent करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम H से magnetic field को represent कर रहे हैं, जबकि E जो है वो यहाँ पे electric field को represent करती है. J को हम कह रहे हैं J is the current density, और रो जो है वो चार्ज डेंसिटी, और v जो है यहाँ पे v being the velocity of the charge. सो अगर आप ये देखें राइट हैंड साइड पे यहाँ पे कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, दैट मीन दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो अगेन यू नो डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर विल गिव यू अ स्केलर क्वांटिटी. यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कराते हैं स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, which are written as equation 5 and 6. अगर हम इन दो इक्वेशंस 5 और 6 यूज करें तो हमारे पास लास्ट इक्वेशंस में से पहली और थर्ड इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, इक्वेशन 7 और 8 की फॉर्म, where we have introduced the scalar and vector potential. Scalar potential को हमने phi से रिप्रेजेंट किया है और vector potential को हमने a से रिप्रेजेंट किया, so that they can be represented in terms of a wave function. जबकि स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल आपस में रिलेट करते हैं थ्रू लॉरेंस कंडीशन. लेटर ऑन हम ये प्रूव करेंगे लॉरेंस कंडीशन को, दैट डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस 1/c पार्शियल फाई और पार्शियल टी इज इक्वल टू 0. सो चूंकि हमारा टारगेट ये है कि हम 4 इक्वेशंस को लेके एक सिंगल इक्वेशन लिखना चाहते हैं या कोवेरियंस फॉर्म उसकी लिखना चाहते हैं. सो अभी हमने इसको 2 इक्वेशंस में रिप्रेजेंट कर लिया, 4 इक्वेशन से 2 इक्वेशन. स्टिल हम ये चाह रहे हैं कि 2 इक्वेशन से एक इक्वेशन लिखी जा सके. सो इसके लिए हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं और इसको टेंसर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज डेल मीन इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं, x, y एंड z, और चौथा कंपोनेंट ये t है. हम चाहेंगे कि ये चारों कंपोनेंट्स किसी एक सिंगल वेरिएबल में लिखे जा सकें. इसको हमने नाम दिया है डी-एलेम्बर्टियन ऑपरेटर. और अभी जो नेक्स्ट हम आर्टिकल करने लगे हैं, बेसिकली दिस इज अ सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ डी-एलेम्बर्टियन ऑपरेटर. हम इसको कोवेरिएंट फॉर्म में इसको लिखते हैं, सो दैट यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे. चूंकि जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं, x, y एंड z, तो चौथा कंपोनेंट t है. अगर हमने इसको किसी सिंगल फॉर्म में लिखना है या टेंसर फॉर्म में लिखना है तो ये t भी इन टर्म्स ऑफ
x होना चाहिए या y होना चाहिए, z होना चाहिए। और x y z को तो हम किसी एक वेरिएबल में लिख सकते हैं। यू कैन लेबल x बाई x1, y बाई x2 एंड z बाई x3। तो हम चाहेंगे कि ये t भी इसी तरह से x में लिखा जा सके सो दैट कि हम इसको कंबाइन कर सकें। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है पार्शियल बाई पार्शियल t इज इक्वल टू पार्शियल x4 ओवर पार्शियल t इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल x4। सो अगर हम देखें तो ये चेन रूल के थ्रू ये कैंसल आउट हो जाएंगे। अगेन वी हैव पार्शियल ओवर पार्शियल t, बट यहाँ पे हम x4 को यूज़ कर सकते हैं। और ये x4 फोर वेक्टर जो हमने डिफाइन किया था लास्ट कुछ लेक्चर्स में, उसकी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने फोर वेक्टर को डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ x नॉट, x1, x2 एंड x3, जबकि x1, x2, x3 जो थे वो हमारे स्पेस कंपोनेंट थे, x नॉट जो था वो टाइम कंपोनेंट था, और टाइम कंपोनेंट हमने लिया हुआ था ct। बट इन टर्म्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम डिफाइन करते हैं तो जैसे मैंने वहाँ पे भी कहा था, नोटेशंस हम चेंज कर सकते हैं। हम 1 2 3 4 भी यूज़ कर सकते हैं, और पहला कंपोनेंट टाइम का हो सकता है, बाकी रिमेनिंग कंपोनेंट स्पेस के हो सकते हैं, या पहले 3 कंपोनेंट स्पेस के होंगे तो चौथा कंपोनेंट टाइम का होगा। नेक्स्ट मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ, उसमें चौथा कंपोनेंट एज ए टाइम का हम ले रहे हैं, जबकि पहले 3 कंपोनेंट x1, x2, x3 जो होंगे वो स्पेस कंपोनेंट होंगे। और यहाँ पे जो हम वेरिएशन ले रहे हैं वो भी 1 2 3 एंड 4 ले रहे हैं, इंस्टेड जो हम पहले यूज़ कर रहे थे 0 1 2 एंड 3। सो इस बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे 4 स्टैंड्स फॉर टाइम कंपोनेंट है, जबकि 1 2 3 स्टैंड्स फॉर स्पेस कंपोनेंट है। और इसकी वैल्यू चूंकि हमने वहाँ पे रखी थी ct, तो अगर हम ct ही यूज़ करें, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं स्पेशल रिलेटिविटी में, तो स्पेस कंपोनेंट तो वही x1, x2, x3, जबकि जो टाइम कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू 4 वेक्टर फॉर्मलिज्म में 4 वेक्टर की वैल्यू अयोटा ct होगी। सिर्फ अयोटा का यहाँ पे और एडिशन आ जाएगा, वहाँ पे हमने ct डिफाइन किया था, तो यहाँ पे हम अयोटा ct ले रहे हैं। अगर आप यहाँ पे अयोटा ct रखेंगे तो अयोटा भी कॉमन कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो पार्शियल t ओवर t आ जाएगा, दैट मीन दिस विल बी अयोटा c। तो यह आपके पास अयोटा c पार्शियल और पार्शियल x4 आ जाएगा। दोबारा से अगर हम यही ऑपरेटर दोबारा ऑपरेट करें तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस सी स्क्वेयर पार्शियल स्क्वेयर ओवर पार्शियल x4 स्क्वेयर, इसकी ये वाली वैल्यूज आ जाएगी। सो इस तरीके से पार्शियल स्क्वेयर और पार्शियल टी स्क्वेयर की वैल्यू जो आएगी माइनस सी स्क्वेयर पार्शियल स्क्वेयर और पार्शियल x4 स्क्वेयर होगी। सो आप देख सकते हैं कि हमने पार्शियल स्क्वेयर और पार्शियल टी स्क्वेयर को इन टर्म्स ऑफ x4 स्क्वेयर रिप्रेजेंट कर लिया। सो अब जो ये डीएलिमिनेटर हमारा ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज ये 1 ओवर सी स्क्वेयर माइनस 1 ओवर सी इसके साथ मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस 1 ओवर सी स्क्वेयर पार्शियल स्क्वेयर और पार्शियल टी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू पार्शियल स्क्वेयर और पार्शियल x4 स्क्वेयर आ जाएगा। और बाकी जो 3 कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, उनको हम लिख सकते हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो इनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पार्शियल स्क्वेयर पार्शियल एक्स स्क्वेयर, पार्शियल स्क्वेयर पार्शियल वाई स्क्वेयर प्लस पार्शियल स्क्वेयर पार्शियल जी स्क्वेयर। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x1 स्क्वेयर, x2 स्क्वेयर, x3 स्क्वेयर, और अभी भी जो हमने वैल्यूज फाइंड की है वो हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगी x4 स्क्वेयर आ जाएगी। अब ये देखें तो ये सारा एक ही आपके पास वेरिएबल आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं पार्शियल एक्स न्यू इंटू पार्शियल एक्स न्यू। इस न्यू की अगर आप वेरिएशन देंगे न्यू 1 2 3 एंड 4, तो आपके पास ये अबव फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि ये सेम है और
हम जानते हैं कि टेंसर में ये स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए हमने इसको पार्शियल एक्स न्यू इंटू पार्शियल एक्स न्यू लिखा। और ये सेम वेरिएबल इंडिसेस इसलिए लिए हैं बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आपके पास यहाँ पे स्केलर बचेगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपके पास स्केलर एक तरीके से है, बिकॉज कोई इंडिसेस नहीं है। तो इस तरीके से हमने सिमेट्रिकल फॉर्म में या कोवेरियंस फॉर्म में डीएलएम्बर्ट ऑपरेटर को लिख लिया है। अब हम इस पूरे ऑपरेटर की वैल्यूज इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 में यूज़ कर 7 और 8 में यूज़ करते हैं, जो हमने यहाँ पे ये देखी। इसका मतलब इस सारे की जगह इक्वेशन 7 और इक्वेट में यहाँ पे लिखा जा सकता है पार्शियल स्क्वायर ए ओवर पार्शियल एक्स न्यू पार्शियल एक्स न्यू। इस तरीके से इसको लिखा जा सकेगा पार्शियल स्क्वायर 5 ओवर पार्शियल एक्स न्यू इज इक्वल टू -4 पाई रूट। तो 7 और 8 को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन 9 एंड 10। अगेन हमारा टारगेट ये है कि हम इसको एक सिंगल इक्वेशन में लिखना चाह रहे हैं, बट अगर आप गौर करें तो ये भी बोल्ड है, ये भी बोल्ड। इसका मतलब ये है कि 3 कंपोनेंट इसके अंदर छुपे हुए हैं, ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बोल्ड मीन दिस इज वेक्टर क्वांटिटीज। और इस 10 में देखें तो कोई बोल्ड नहीं है, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे। सो चूंकि हमारा टारगेट ये है कि इन दो इक्वेशन से हमने एक सिंगल इक्वेशन लिखनी है, तो हम और ये सिंगल इक्वेशन में लिखी जा सकेंगी अगर लेफ्ट हैंड साइड कंबाइन हो सके और राइट हैंड साइड कंबाइन हो सके। बट यहाँ पे है करंट डेंसिटी और यहाँ पे है चार्ज डेंसिटी। सो हमें एक तो इक्वेशन 10 को मॉडिफाई करना होगा, बिकॉज 3 कंपोनेंट इसके अंदर है, चौथा कंपोनेंट हम यहाँ से लेंगे। इसी तरीके से इस 5 को भी हमें इसके साथ एसोसिएट करना है, तो हम ये 3 कंपोनेंट के साथ ये चौथा कंपोनेंट मिला के इसके साथ एसोसिएट कर देंगे। सो अब हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं। सो हम क्या करते हैं कि हम अयोटा से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और सिमिलरली राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो गया, तो साथ ही हमने सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हम कुछ 2 डेफिनेशन यूज करते हैं। एक 4 वेक्टर फॉर्म ऑफ पोटेंशियल है, वेक्टर पोटेंशियल, और एक 4 वेक्टर फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रूव भी करेंगे कि करंट डेंसिटी जो है वो इस तरीके से लिखी जा सकती है। आई मीन फर्स्ट 3 कंपोनेंट तो ये इसके एज यूजुअल है, जबकि चौथा कंपोनेंट जो है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रूव भी करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो पहले 3 कंपोनेंट जो हैं वो ए बोल्ड के साथ हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि चौथा कंपोनेंट हमने अयोटा फाई कहा हुआ। इसका मतलब जहाँ पे ए, अगर हम इसको कहें A1 A2 A3, तो ये A4 हो जाएगा अगर हम म्यू को 1 2 3 4 करें तो। सो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर पोटेंशियल का चौथा जो कंपोनेंट होगा वो अयोटा फाई होगा, जबकि उसका पहला कंपोनेंट A1, सेकंड कंपोनेंट A2 और थर्ड कंपोनेंट A3 होगा। इसी तरीके से करंट डेंसिटी के जो पहले 3 कंपोनेंट्स हैं वो Jx, Jy और Jz होंगे, जबकि चौथा कंपोनेंट जो होगा वो अयोटा जीरो होगा। अब आप पिछली स्लाइड पे देखें तो ये वो फॉर्म बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम A4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारा J4 बन सकता है। तो अब आप इक्वेशन 9 और 10 को देखें तो ये चूंकि मैंने कहा वेक्टर फॉर्म में है, तो ये लिखी जा सकेगी बेसिकली। इसके अंदर 3 कंपोनेंट, हम इसको लिख सकते हैं पार्शियल स्क्वायर A1 ओवर पार्शियल एक्स न्यू इज इक्वल टू -4 पाई सी J1। यानी आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से 3 इक्वेशंस। A1 के लिए इधर J1 आ जाएगा, A2 के लिए इधर J2 आ जाएगा, इधर A3 आ जाएगा, इधर J3 आ जाएगा। तो चौथी आपको वैल्यू ये मिल जाएगी। यू कैन से ये आपके पास मिलेगा पार्शियल स्क्वायर A4 पार्शियल एक्स न्यू टू पार्शियल एक्स न्यू। सो अगर हम 9 और 11 को इनफैक्ट सम करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें आप देखें तो आप वही इक्वेशन 9 भी निकाल सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन 11 भी निकाल सकते हैं। यानी म्यू को जब हम 4 पुट करेंगे तो यहाँ J4 आ जाएगा, इक्वेशन 11 बन जाएगी।
बाकी म्यू को बारी बारी आप 1 2 3 रखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास आ, ये इक्वेशन 9 बन जाएगी, बिकॉज 9 वेक्टर फॉर्म में है तो उसके अंदर 3 कंपोनेंट छुपे हुए हैं। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द मैक्सवेल इक्वेशन इन 4 वेक्टर फॉर्म। The right hand side of this equation basically is the product of a universal constant minus 4 pi over c and the 4 vector j mu. This must be itself a 4 vector, and since the operator partial square partial x nu is Lorentz invariant, that is it does not change when the frame of reference is changed. So in order to the validity of this equation, the quantity a mu must be 4 vector, and this 4 vector is called the 4 vector potential. Subject to the Laurent condition, this equation is written in the form of 4 vector form. तो बेसिकली हमारा टारगेट भी था कि हम इसको 4 वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सके। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक तो लॉरेंस कंडीशन को प्रूव करेंगे और एक फोर करंट डेंसिटी का फोर्थ कंपोनेंट हम निकालेंगे जो भी हमने इस लेक्चर में यूज़ किया है, दैट इज आयोटा 0। सो थैंक यू वेरी मच।